रजनी आई है, देखो कुत्ते का फोटो डाल दी। Good evening. Today we are going to discuss the remedy which is going to be expressed urinary symptom. There is one philosophy of prescribing or understanding both, that every man is going to be sick by some strong influence, inimical influence, disease producing influence. Is going to नहीं ठीक and after this influence, which is going to be affect our body, and the effect of this body is to diffuse influence inside and make sick patient as a whole. I am going to just say about few things, few basic things of homeopathy. I am going to repeat that the patient, when he is going to ready to receive any wrong influences, inimical influences, जो हमारे दुश्मन हैं उनके असरात, जो हमारे लिए डिजीज कंडीशन है उसके इफेक्ट जब हम पर इन्फ्लुएंस करते हैं, तो पहले पेशेंट एज ए होल वो बीमार हो जाता है ऑन डायनामिक लेवल, and the patient is going to develop some of the alteration of his health. भूख में चेंज आ जाएगा, नींद में चेंज आ जाएगा, आपके डिजायर एवर्शन के अंदर चेंज आ जाएगा, आपके मौसम के साथ, आपके घर वालों के साथ, आपके इन्वायरमेंट में आपको थोड़ा सा चेंजिंग महसूस, which was not found earlier. This we call dynamic influence of holistic approach. And after that, again, the revolt of the body, the revolt of the vital force is going to minimize the burden of sick vital force. Send some of the signals from the particular point, weak point. If it is a heart weak point, symptom going to produce with the heart. If it is the weak point of the throat, symptom going to produce with the throat. If the patient's condition is weak from the brain, symptom is going to produce through the brain. If the joints are the weak, the symptom of the sickness is going to produce from the joints. Similarly, in a case of urinary disease, this is not the disease part related to the urinary system. It is the man who is sick, and the weakest part of this urinary system is going to expel, mark my friend, expel the burden of the vital force as a symptom, demanding for indicated remedy.
I'm clear? I think not clear to all of you. I'm just going to repeat it. It's the philosophy of development of the disease from homeopathic point of view that when the patient as a whole, I mean to say that on the level of dynamic level or vital force level, when feels sick, weak, and receptive condition of any bad influences from the outside to inside influence. And we got at the particular moment. And that moment is going to make us sick. Sick internally means patient as a whole. Then the whole body is going to be, or holistically, person is going to be sick. But no manifestation in particular. Rather, generally, patient is going to feel sick. Am I not making really clear? To I request you to go through the homeopathic philosophy of Kent. पहला चैप्टर आप लोग अच्छे से पढ़ो. The first chapter means sickness. Sickness is not the disease. It's the involvement of the vital force patient as a whole. बस इतना बात आप. अफरोजम 1 में भी आप देखो कि हनीमैन सिक की बात करता है. The stage of the sickness is internally development of the sickness. No sign in symptom in dominating form. When this course is going to complete inside, then body vital force is going to expel the effect of this sickness. Any weakest part of the body from the whole, from mind to body, from head to foot. And that symptom looks local. But still, this is the manifestation through the local. As a whole, patient is suffering from patient as a person. बस ये बात आप लोग याद रखो. अगर ये अच्छे से समझ में आ जाती है, इसी को हम अपनी लैंग्वेज में, अपने लेक्चरों में बोलते हैं होल थ्रू द होल. किसी छोटी जगह से बहुत बड़ी चीज को देखना, किसी छोटी जगह से, किसी लोकल जगह से पूरे टोटल को देखना. A philosophy of particular to general, local to general. जब वर्कम ने मुझको बहुत इंसिस्ट किया कि हम ऐसे ही कुछ बोलना चाहते हैं, मैंने कहा देखो इसको थेराप्यूटिक मत करो, लेकिन एक उसकी अपनी लिमिटेशन के साथ. तो मैंने कहा एक मौका हमको भी देना, तो हम भी लोगों को ये समझा सकें कि हम लोग लोकल को कैसे, लोकल से टोटल को देखते हैं. ये मेरी फिलॉसफी नहीं, ये हनीमैन की टीचिंग. और ये हनीमैन की टीचिंग प्रूविंग में भी ऐसे ही होता है. और पेशेंट को जब हम लोग सिक देखते हैं तो भी वैसे ही होता है, जैसा मैंने अभी बताया. प्राइमरी स्टेज ऑफ सोरा सिफिलिस साइकोसिस भी ऐसे ही होते हैं. तो कभी भी जो जनरल इन्वायरमेंट होता है हमारे बॉडी को जाके इन्फ्लुएंस करता है, वीक करता है, सिक करता है. सिक ऑन द लेवल ऑफ, हमेशा याद रखिएगा वाइटल, हमेशा याद रखिएगा सिक में एक जर्नल वेलबींग चेंज हो जाती है.
जब ये जनरल वेल बीइंग फेल हो जाती है, चेंज हो जाती है, that we call sickness. And then when sickness is going to be overburdened to our vital force, then vital force gradually is going to get power, and by power is burden is going to be expelled from the body by the weakest part of body, चाहे माइंड हो चाहे body. ये दो जगह से उसके साइन सिम्टम डेवलप होने शुरू होते हैं. इस रियली अब सिक से डिजीज जा रहा है, लेकिन बहुत अच्छे प्रिस्क्राइबिंग और बहुत अच्छा स्टेज होता है होम्योपैथिक प्रिस्क्राइबिंग का कि आप सिक स्टेज में ही अबॉर्ट कर दो, या एक्यूट डिजीज हो या एक्यूट एपिडेमिक हो या कोई भी डिजीज, सबों का प्रोसीडियर ऐसे ही है. तो दोज पर्सन who are suffering from some serious inimical forces, powerful forces, inimical, हमारे फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल, वो जाके हमारे वाइटल फोर्स को सिक करते हैं, ओवर बर्डन कर देते हैं. और ओवर बर्डन हो जाने की वजह से वाइटल फोर्स चुप हो जाता है, सहता है, जिसको बोलते हैं सहना. और जब जो इनिमिकल फोर्सेस है, आउटसाइड फोर्सेस हैं, सिक प्रोड्यूसिंग फोर्सेस हैं, वो जाके अच्छी तरह से जब कब्जा कर लेती है, तो हमारे अंदर, हमारे वेल बीइंग के अंदर एक चेंजेस आ जाता है. And that changes of well-being is going to produce as a sick manifestation, not disease manifestation. Approach 1. तो सिकनेस हम आपसे पूछेंगे कहाँ है, तो सिक पूरा सर से पैर तक पेशेंट होता है. और जब यही सिकनेस किसी पर्टिकुलर पार्ट से प्रोजेक्ट करता है, तो डिजीज हो जाता है. ये अरकम थोड़ा सा ऑर्गेनल निकाल के सामने दे. केंट का फिलोसफी है सामने. ये बात आप लोग ठीक से समझ लो. तो ये जो सीरीज चल रहा है, indications perceived through the urinary tract is helpful not only to cure the disease related to the urinary tract, rather patient as a whole, because patient sick as a whole. मैं आपको अपना मन खोल के देता हूँ, आप लोग भी अपना मन खोल दीजिए. तो पता जा रहा है आप लोग का अपना. मेरा जो रखता है उसको सामने दिया करो. ये तो तुमको दे दिया था, निकालो कहाँ है, आप लोग निकालो. ऑर्गेनम का पहला ऑपरेशन खोलो, फिलोसफी निकालो, अरकम की फिलोसफी निकालो. हाँ, ये मेरा किताब है. टेंट की फिलोसफी निकालो. उधर होगा आपके पास, कहीं भी होगा. ये नीचे होगा. खैर, वो आपको हम दिखला देंगे, आप खुद भी देख लीजिए. ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन का पहला अफ्रोजन जो है वो आप देखिए. द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन is to restore the sick. सिर्फ पैथोलॉजी, सिर्फ डिजीज के साइन सिम्टम के रिमूवल को हनीमैन नहीं कहता है.
तो पेशेंट ठीक हो। यहाँ कहता है टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ, सिक को आप हेल्थ में लाओ, जैसा कि इसको क्योर किया जाता है ऐसा ही कहा जाता है, एज इट इज नाउ। तो कोई भी बीमारी का जो डेवलपमेंट होता है वो पहला स्टेज है सिक का, ओनली ऑन सेंसेशन। मुझे ये खराब लग रहा है, मुझे वो खराब लग रहा है, मेरी नींद ठीक नहीं है, मेरा भूख डिस्टर्ब हो गया, मेरा किसी चीज में दिल नहीं लगता है, मेरा किसी में दिल नहीं लगता है, अच्छे लोग अच्छे नहीं लगते हैं, अजीज अकारीब दोस्त भाई बहन घर वाले देखने को मेरा जी नहीं करता है। दिस इज ऑन द सिकनेस लेवल। यही सिकनेस बहुत दिन अगर बर्डन करता है वाइटल फोर्स को, तो दैट सिकनेस इज गोइंग टू बी एक्सपेल। वाइटल फोर्स को तो आदत है ना, तो हमेशा किसी बर्डन में नहीं रह के उसको बाहर फेंकना चाहते, और जो बाहर फेंकता है किसी भी लोकल पार्ट से, उसकी आवाज, उसकी पुकार, उसकी चीख, उसका डिमांड फॉर टोटलिटी ऑफ द सिम्टम बाय लोकल एरिया। So patient sick general as a whole and going to expel the particular part, as we are going to discussing urinary tract symptomatology or urinary tract sickness. ये urinary tract sickness जो होता है, this is a sickness of the sick, not the sickness of the urinary part, because this is a poor part, because it is a weak part, because it is a from family background to become a weak. So weak part is easily going to be express the sign and symptom of the patient as the whole sickness, from general to particular. ये एक्सपेल्ड होता है होम्योपैथिक फिलोसफी का, इसको हानीमन ने अपने पहले अफरोजम में साफ कह दिया है। फिर यहां से मैं थोड़ा सा आपको ऐड कर दूं, sickness is going to be indicating without diagnosis. In the sick stage, you are not able to diagnose, rather you only diagnose a sick person. इसी तरह आप बहुत जगह देखिएगा कि ये जो लोग बोलते हैं प्रेगनेंसी सिकनेस, नौशिया, वॉमिटिंग, ये सब जो होता है, उससे पूछिए कहाँ है तुम्हारा नौशिया वॉमिटिंग, कहाँ है नजदीक। In cases of the pregnancy, we need our requirement for the correction of the whole personality. Because during the time of pregnancy, a woman is going to express or their sick part or feeling of the sickness in the different part. We're just going to perceive it. Similarly, the concept of the disease of urinary tract is simply an expression of a sick personality, not the disease of the urinary tract. We can say in the similar level that man is going to express their symptomatology for the requirement of the treatment from urinary tract. It's better to consider totality, the particular part of the expression of the sickness like urinary tract, and the something
some sick people. So whenever we are going to look after the cases, those who are suffering from urinary tract, our best policy to consider totality of the symptom taken from particular part of the urinary tract to consider patient as a whole, as a sick level. I am saying sick level, not pathological level. इसलिए हम लोग कभी कभी ये देखते हैं कि पेशेंट अगर नमूनिया का है तो नमूनिया का तो सिम्टम है ही है, नमूनिया का है तो लंग्स के एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन वो लंग्स की बीमारी नमूनिया में कहीं थर्स्टी और थर्स्टलेस का इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, ये सिक का है, दैट सिक हु रिप्रेजेंट pneumonia. So those who are representing pneumonia, representing typhoid, representing migraine, eye problem, hair problem, their problem, this one expression. हमें लगता है कि हम अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को समझाने की, शायद आप लोगों के दिमाग में ये बात आ सके. So is this condition my humble request to you that please take care of the totality. Consider totality, the part as well as patient as a whole. हमारे बुजुर्गों ने हम लोगों को बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं. दैट एग्जाम्पल ऑफ निमोनिया का, टाइफाइड का, खांसी का, इसका उसका. तो दो ग्रुप ऑफ सिम्टम चलते हैं. एक जो जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट का सिम्टोमेटोलॉजी, और दूसरा पेशेंट का सिकनेस. ये दो चीज मिलके हम लोगों को एक पूरा पिक्चर देखने को मिलता है प्रिस्क्राइबिंग के लिए, और यही पिक्चर हमारे लिए बेस्ट पिक्चर है. कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ लोकल सिम्टम को ही इंपॉर्टेंस देके रह जाते. अब लोकल सिम्टम में भी दो ग्रुप होते हैं. पहला ग्रुप जो लोकल सिम्टम का है वो प्योरली पैथोलॉजी का. पेशाब का रंग कैसा है, बदबू कैसा है, पस कितना है, इस तरह के जितने पैथोलॉजिकल डिस्चार्ज होते हैं उसका एक ग्रुप ऑफ सिम्टम होता है. उसके साथ साथ जलन, दर्द, तकलीफ बिफोर मैक्चुरेशन, ड्यूरिंग मैक्चुरेशन एंड आफ्टर मैक्चुरेशन होता है. ये सेकंड पार्ट is one of the expression of the sick people. The main I am going to saying about, apart from that, there is a feeling of the patient as a whole. पेशाब में जलन है लेकिन पानी बार बार पीना चाहता है, थोड़ा थोड़ा पीना चाहता है. This is not the demand of the urinary tract. It is the demand of the patient as a sick person. So you, as a very good physician, you may ignore the pathological symptom, but pathologically related symptom, complain before, during, after, either related to the urinary tract or patient as a whole, to be considered this altogether and make it the best point of prescribing. Now, इतनी सी बात अगर हम आपको अच्छी तरह समझा लेते हैं तो क्या आप बहुत दूर हैं हमसे. मैं आपसे पर्सनली बैठ के आपको चेक नहीं कर पाता कितना आपने समझा है, और सब कुछ सामने
सबका चेहरा नजर भी नहीं आता है कि कौन लोग कितना समझे हैं नहीं समझे, इसलिए बार बार हम रिपीट कर रहे हैं. दिस इज द होम्योपैथिक फिलॉसफी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द सिकनेस and sickness to the disease and disease to the advanced pathology and advanced pathology to pressure pathology. ये एक डेवलपमेंट है, इवोल्यूशन है डिजीज का. हम इस पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट समझते हैं सिकनेस. अगर आप वेलबींग है आपका, अचानक किसी तरह का कोई इन्फ्लुएंस, इनमिकल इन्फ्लुएंस, उसने आपको सिक कर डाला, या किसी से बात से हो अफरोजों में T1, या किसी की गुस्से से हो, या इसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक इन्फ्लुएंस. देयर इज नो सच डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द कॉज एंड द इफेक्ट. कॉज कहाँ है, इफेक्ट मुझको हुआ. मेरे टीचर ने मुझको बहुत बुरी नजरों से, बड़े इंसल्टिंग नजरों से देखा, बहुत रिव्यूक की फीलिंग हुई, बहुत इंसल्ट की फीलिंग हुई, एंड आई फील सिकनेस. This has got no direct relation of the patients and their cause. And my sickness is first level sickness is my own self disturb. मेरा भूख बिगड़ जाएगा, मेरा प्यास बिगड़ जाएगा, मेरी नींद बिगड़ जाएगी, मेरा सोच बिगड़ जाएगा, मेरा बातचीत करने का एटीट्यूड बदल जाएगा. तो ये जब बदल जाएगा तो हम समझेंगे कि मेरा सिकनेस शुरू हो गया. फिर हम एक एग्जाम्पल बताते हैं सिकनेस. सपोज कीजिए कि मैं बहुत धूप में था, धूप का इफेक्ट हुआ मुझके ऊपर, और सडनली आई फील बहुत बुखार, बहुत बहुत ज्यादा मुझको गर्मी का एहसास होने लगा, बदन में थ्रोबिंग होने लगी, थोड़ा दर्द होने लगा सर, एंड आई फील अनईजीनेस, लाइक टू टेक रेस्ट, but rest will not give any important good feeling. When you go to the doctor, will just give you some medicine and maybe placebo, because there is no diagnostic feeling, or maybe some spasmodic medicine or anti-fever medicine, but this is not the cure. A patient who is going to take in overeating, but in that case of the overeating, I feel sick, feeling nausea, uneasiness, disturbed, no peace of mind, not peace of body. This is purely a sick level. उसी में देखेंगे कि आप चुपचाप पड़ा रहना चाहता है, खाली पानी पीता रहता है, खाली पानी पीता है. The patient has got sickness of the brainia, and we give brainia, and about the आने वाला डिजीज जो है उसको हम लोग इसी लेवल में अबॉर्ट कर देते हैं. और कम देखो फिर लो हो रहा है. थोड़ा सा पानी पीते हैं. मैं ये कह रहा हूँ कि कभी भी जो लोग फैमिली फिजिशियन होते हैं, उनके घर में उसूल होता है कि थोड़ा सा भी अनइजीनेस होने लगता है तो अपने फैमिली फिजिशियन, होम्योपैथिक फिजिशियन के बाद अपने घर वालों को भेज देते हैं, जाओ भाई उनको दिखा लो. अरे अभी तो कुछ तो हुआ ही नहीं है, नहीं नहीं जाकर दिखा लो. और वो वाइस फिजिशियन
जब ये देखता है कि डिजीज का लेवल डिजीज में नहीं सिकनेस में, then he give the medicine on the basis of present totality and abort the आने वाला डिजीज को अबॉर्ट कर देता है। एक और एग्जाम्पल इसका बताती हूँ। सपोज के लीजिए कि पेशेंट जो है, इसमें आपको रेपर्टरी बहुत छोटी छोटी बातों को रेपर्टरी से बहुत हेल्प मिलता है, लेकिन इसके साथ हम लोग पेशेंट एज ए होल भी कंसिडर करके प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो एक आदमी है, वो सिक हो गया, बहुत धूप में काम करता था, धूप में काम करके आया, घर आया, थका हुआ था, पेशाब किया, पेशाब में जलन मिल गया एंड उस जलन के साथ साथ उसको ये फील होने लगी कि जो उसका जो ब्लैडर का एरिया है ना, वो फीलिंग ऑफ कोल्डनेस, ये फीलिंग ऑफ कोल्डनेस उसका तो पहले था नहीं। क्यों डेवलप हुआ? बॉडी जो है उसका अपना सिक हो गया और पेशेंट का वेल बीइंग जो है वो डिस्टर्ब हो गया। और वेल बीइंग के साथ एक इंडिकेशन भी मिल गया, कभी नहीं मिलता है तो हम लोग जर्नल फीलिंग को कंसीडर करते हैं। जैसे मैंने बरानिया का एग्जांपल दिया, बेलाडोना का एग्जांपल दिया, आर्सेनिक का बोलते हैं कि अगर पेशेंट किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हुआ, घर आया बेचैन, छटपट, क्या तकलीफ है, बेचैनी लग रहा है, घबराहट लग रहा है, ये लग रहा है, और बार बार थोड़ा पानी पीता रहता है, बहुत रिस्ट्रिक्ट। जब ये मुझको मिलता है तो हम पहले समझ लेते हैं कि पेशेंट जो है वो सिक के लेवल में है, इसको आर्सेनिक पहले दे दो। आर्सेनिक देने से क्या होगा कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो कंट्रोल में आ जाएगा और आगे चल के जो नेफ्राइटिस डेवलप होने वाला था, जो रिथराइटिस डेवलप होने वाला था, जो दूसरे कोई पैथोलॉजिकल डिजीज डेवलप, वो यहीं पे अबॉर्ट हो जाते हैं। तो मेरे अपना ये मेरा ओपिनियन है कि आप लोग भी अपने घर वालों को, अपने जिस फैमिली जिसके फिजिशियन है आप, उनको ये समझाइए कि देखो भाई, कभी भी ये अनइजीनेस तुम्हारे दिल और दिमाग में आ जाए, फौरन मेरे पास आ जाए। दिस इज अ गुड एंड वेरी हाई पॉइंट, हाईलाइट और हाई टाइम ऑफ प्रिस्क्राइबिंग। सच्चा होम्योपैथिक लेवल का जो प्रिस्क्राइबिंग होता है वो यही होता है, और उसमें हम लोग अवॉइड कर देते हैं बड़ी बड़ी बीमारियों को, जो आगे चल के कैंसर होने वाला है वो आज अवॉइड हो जाता है। तो ये जो इन्होंने एक सेमिनार और वेबिनार का एक वेब शुरू किया है, एक सीरीज शुरू किया है, जो यूरिनरी ट्रैक के जरिए पेशेंट का सिकनेस दिखाना चाहते हैं। यूरिनरी ट्रैक के जरिए सेकंड स्टेज, यूरिनरी ट्रैक के जरिए पेशेंट की पैथोलॉजी दिखलाना चाहते हैं, जो आगे चल के एडवांस स्टेज में खराब बीमारी में किडनी से लेकर यूरेथ्रा तक होने वाला है, वो यही अबॉर्ट हो जाएगा, वो यही कंट्रोल आ जाएगा और यही रिमूव हो जाएगा। और ये रिमूवल जो होगा वो बहुत शानदार है। तो हम बात कर रहे थे कि ऐसे केस में जिसमें हम लोगों ने ये देखा है, छोटे छोटे सिम्टम जो है बड़े इंपॉर्टेंट होते, सिंगल सिम्टम बड़े इंपॉर्टेंट होते।
क्योंकि जो जो स्टेज होता है ना, सिकनेस वाला स्टेज होता है, उस पे बहुत ज्यादा साइन सिम्टम नहीं मिलता है, और इसमें सिकनेस वाले स्टेज में बहुत ज्यादा हम लोगों को फैमिली बैकग्राउंड ढूंढ ढांड नहीं करना पड़ता, क्योंकि सिम्टम बड़ा डोमिनेट होता है, क्लियर होता है। ऐसे क्लियर केस में हम लोग, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने अभी बताया कि पेशेंट अचानक आया, उसकी तबीयत बिगड़ी हुई है, मन मिजाज ठीक नहीं लग रहा, इससे पहले वो दौड़ धूप बहुत कर रहा था, सन हीट का एक गुजर हुआ और घर आके बीमार हो। बीमार क्या हुआ कि कोई तरह का पैथोलॉजिकल सिम्टम नहीं है, लेकिन पेशेंट फील कर रहा है कि उसका ब्लैडर जो है बिल्कुल ठंडा, और पेशेंट धूप का इफेक्ट, धूप देख नहीं सकता, धूप बर्दाश्त नहीं करता, पानी पी नहीं सकता, पानी पीना, पानी की तरफ देखना, पानी की आवाज सुन नहीं सकता। अचानक सुबह गया था पैडी फील्ड में काम करने के लिए, सुबह गया था अपने ऑफिस के किसी काम के लिए, सुबह गया था एज ए मार्केट ऑफिसर मार्केटिंग करने के लिए, मार्केटिंग का एनालिसिस करने के लिए, और शाम होती होती उसकी फीलिंग आई, उसका ब्लैडर जो है बिल्कुल ठंडा, डलनेस आ गई, ड्राउजनेस आ गया, पेशेंट को कोई चीज अच्छा नहीं लग रहा, पानी पीना तो उसके लिए सबसे दुश्वार, भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। दिस इज द स्टेज ऑफ द सिकनेस, and on the basis of this beautiful description which we found in the case of the lysine, we have prescribed lysine, and by lysine prescribing, patient is going to be free from all the burden which they developed due to this particular stress and strain condition, and the patient free from. Another case I am going to sing about, the patient having a severe and constant stress of life. Stress is going to be developed and making depression of the life. Patient does not feel well. उसके दिमाग में आस्ते आस्ते उसका मूड, मन, मिजाज सब खराब होने लगा, चुप होने लगा, जो हंसता खिसता चेहरा चुप, खामोशी, कभी कभी आंसू आ जाना, कभी रो देना, कभी गुस्सा में आना, कभी चुप हो जाना। ये देख रहे हैं कि माँ बाप आपके पास लेके आते, कहते हैं मेरा बेटा काम करता है ऑफिस में बहुत स्ट्रेस है, लॉट्स, या मेरा बेटा बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, आजकल बहुत सारे स्ट्रेस चल रहे हैं, इनकम टैक्स का स्ट्रेस है, सेल टैक्स का स्ट्रेस है, इसका स्ट्रेस, उसका स्ट्रेस, बैंकिंग क्लोज है, क्लोज बैंकिंग है, तो इसमें इतने सारे स्ट्रेस है कि मेरा बेटा इज गोइंग टू बिकम ओवरबर्डन एंड फील सिक। एक याद रखिएगा, ए लॉन्ग कंटिन्यू सडन एंड वायलेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस is going to make sick, and this sickness is not disease. Uneasiness starting from head to foot, उसमें सिर्फ सर का दर्द बहुत होता है, जरा पेशाब खुल के हो जाता है तो पेशेंट बड़ा कंफर्ट फील करता है, बहुत कंफर्ट। ऐसे केसेस जब आपके पास आए तो आपके लिए this particular syndrome, not disease I am saying, the sickness, demand ignatia amara. वो जो बहुत जोर से बोलता था, गरज के बोलता था, अब बिल्कुल धीमा पड़ गया, बातें अपनी विस्परिंग में करता है,
फुस फुस करके बातें करते हैं, खुल के बोलता नहीं है, रह के ऐसे इनवॉलेंट्री साई बातों के दौरान दौरान ये होता रहता है, वो करता नहीं है, और बीच में भी यॉर्निंग होती, नींद नहीं है। और ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्नीशिया हमारा। मैंने बहुत सारे केसेस जो हमारे बहुत फैमिली, जो बहुत क्लोज लोग हैं हमारे साथ, और हमेशा होम्योपैथिक पर भरोसा किया है लोगों ने, ऐसे बहुत सारे केसेस के अंदर मैंने अपनी जिंदगी में this stressful life and effect of the stress to make patient sick and later stage become a disease. ऐसे केस में मैंने इग्निशिया दिया है, लाजवाब रिजल्ट होता है, लाजवाब सा। 200 की कॉन्फेक्शन में दे देता हूँ, 2-3 इंफेक्शन दिया, पेशेंट की नींद आ गई, दूसरे दिन वेलबींग एस्टैब्लिश, बिकॉज द पेशेंट इज ओनली इन द सेंसिटिव लेवल, sickness on the sensitive level, not any pathology. तो एज ए होम्योपैथिक फिजिशियन हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि पेशेंट जो है वो पेशेंट सिक के लेवल में है या डिजीज के लेवल में। और विस्परिंग इसको बोलते हैं, विस्परिंग, या कहिए कि ये यहाँ पर क्या क्या कॉन्कॉमिटेंट उसके डिस्टर्ब सिकनेस का मिल रहा है, हल्के लेवल में नजर आएगा आप, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने अभी इग्निशिया का कहा, लाइसिन का केस का एग्जांपल दिया, आर्सेनिक का केस का, ब्रायनिया का केस का एग्जांपल दिया। हमें अभी तक ये इतने अच्छे लेवल में मुझको मिला है कि बड़े अच्छे रिजल्ट हुए। लेकिन जानते हैं हम, ये इसलिए कि हमारे फैमिली के जो हमारे पेशेंट हैं, जिसका मैं फैमिली फिजिशियन है, वो लोग तो अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं यही बीमारी अगर आगे चला, यही सिकनेस आगे चला तो बहुत एडवांस पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस हो जाता है। हम यही काट दिया, क्योंकि उनको पता है इससे पहले वो खुद दूसरी जगह इलाज कराते थे, डॉक्टर ने पैरासिटामोल दे दिया, ये मोल दे दिया, वो डोज दे दिया, सप्रेशन हो गया सिकनेस, and that after that is going to influence vital force, and then vital force is going to be expressed as a disease manifestation of the sign and symptomatology. One more advanced stage. उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि ब्लैडर में ट्यूमर हो जाएगा, किडनी में सिस्ट हो जाएगा, किडनी में स्टोन हो जाएगा, ऐसे करके बढ़े। बट बिफोर दैट कितना ख्याल रखना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल हम अब क्या बताएं कि मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, बहुत सारे, इसलिए बोल रहे बड़ा कॉमन मुझको मिला है। कुछ केसेस तो नहीं मिले, कुछ मिले हैं तो बहुत कॉमन मिले। तो उसमें मैंने ये देखा कि पेशेंट ये कहता है कि मैं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, काम धाम हम कर रहे थे, अचानक मेरे अंदर ऐसा लगा कि दिल बैठा जा रहा है और कमजोरी लगने लगी, और जहां पेशाब मैं करने जाता था वहां उसको पेशाब के साथ नौसिया वॉमिटिंग लगी, पेशाब में थोड़ी जलन भी लगती और कभी नहीं भी लगती, लेकिन ये जो फीलिंग ऑफ नौसिया था ये बड़ा परसिस्टेंट, बड़ी परेशानी हुई। Nausea and constant nausea is one of the indication of the ipecacuanha. तो हम लोगों को कभी ऐसी स्टेज में इपिकाकुआना का भी इंडिकेशन मिलता है, सिर्फ जबान खोल कर देख लो, कैसा जबान खोल कर देखा तो टंग क्लीन या हल्का सा कोटिंग होता है।
ऐसे करने से हमको इपिकार इन एडवांस स्टेज में, बिफोर द पैथोलॉजी, बिफोर द डायग्नोसिस, when the patient having in a sick stage is going to be aborted by few doses of इपिका। तो ऐसे केसेस मैंने कहा आपको कि हर स्टेज के लिए, सिक स्टेज के लिए हमारी पूरी रेमेडी एकोनाइट से लेकर जिंकम मेटालिका तक जितने मेडिसिन सबका स्टेज। एकोनाइट में तो हम लोगों को साफ सुथरा नजर आता है। देखिएगा एलेंस की नोट में, हम कभी और भी डिस्कस करेंगे, तो जिसपे आप ये देखेंगे कि अचानक सर्दी जो है गर्मी में जाता है और हॉट एक्सपेल नेचर फेंकता है और हम लोग उससे इफेक्टेड हो जाते हैं। वही हमारे लिए इरिटेटिंग फैक्टर होता है, सिक प्रोड्यूसिंग फैक्टर होता है। और उसके बाद हम यही देखते हैं कि मेरा पेशाब जो है, हमेशा पेशाब ज्यादा लगता है जब हम कोई चीज उठाते हैं, थोड़ा सा भी उठाते हैं तो मेरे पेशाब की ख्वाहिश पड़ जाती है। डिजीज नो डायग्नोसिस। यूरिथ्रा में स्कोप डाल के देखा गया, कोई पैथोलॉजी, बट स्टिल पेशेंट हैज गॉट टू सेइंग। क्या करें, जब हम वैसे ही उठाते हैं तो पेशाब की अर्जिंग बढ़ जाती है। और जब से ये हॉट एक्सपेल हुआ है, जब से मैंने ये देखा है कि पेशेंट का ऑनस्लाट हुआ है गर्मी का, अच्छे खासे हम लोग बहुत अच्छे से चल रहे, अचानक ये देखा। नेवर फॉरगेट ब्रायनिया। ऐसे ही हम लोग देखते हैं सीजन चल रहा है, अचानक ये ठंड बढ़, जैसे अभी कलकत्ता का मौसम बहुत ठंडा हो गया, बरसात हो गई है और जम के बरसात हो गई। अब ये बरसात एक बरसाती मौसम की तरह बिफोर गर्मी से आ गया। हर चीज कोल्ड कोल्ड, हर चीज डैम डैम डैम। अब इसी में किसी पेशेंट को, किसी पर्सन को डलनेस फीलिंग हो और किसी बूढ़े आदमी को बार बार पेशाब बढ़ जाए, तो ऐसे केसेस है। दिस इज नॉट द डिजीज लेवल, इट इज अ सिक लेवल। इसमें कभी कभी हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि प्लासिबो से काम चलाएंगे हम या सचमुच हमको एक मेडिसिन देना पड़ेगा। अगर देने पड़ने वाली बात अगर है तो वो डर का मारा ही होगा, बिकॉज दिस इज सडन चेंज इन द एटमॉस्फेयर। A very susceptible patient, a very sensitive patient to the sickness, especially related to the damp and wet, produce frequent discharges of the urination. Look like this is a particularly demonstration of the symptom of the urinary tract. But in fact, patient going to be impressed by this sudden change of environmental pollutions, a type of pollution with the weight, for which Dalkamara is one of the important medicines. तो ब्रायनिया भी हॉट एक्सपेल के बाद जहां कुछ उठाया बस भागा पेशाब के। हम लोग डायग्नोज करेंगे प्रोस्टेट की बीमारी है, ठीक है, कराते रहो। अरे पहले ही मैं सिक के लेवल में उसको ब्रायनिया डाल के अवॉइड कर दो। बार बार फ्रीक्वेंसी ऑफ मेडिसिन, फिर विक्यूरेशन बढ़ जाता है इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस की वजह से। that atmosphere is going to be very cold and damp by too much rainy as in Calcutta. So there is no diagnosis at all. In fact, the patient is going to be suffering from a sickness due to the environmental changes. We give medicine, and that medicine is a survival medicine. Medicine for the sick person, not disease. और हनीमैन का मामला यही आता है कि वो सिक टू हेल्थ, सिक को हेल्थ में ले आओ बस,
और हेल्थ को मेंटेन कर दो, तो उसको कहा जाता है होम्योपैथिक फिलॉसफी में क्योर। एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ आफ्टर द रिकवरी ऑफ द सिकनेस। यहाँ बहुत एडवांस पैथोलॉजी की बात हनीमन नहीं कर रहा है। आप देखें ना, सिक बोल रहा है, तो एज ए होम्योपैथिक फिजिशियन, अ फिजिशियन फॉर द अबॉर्टिंग एडवांस पैथोलॉजिकल जी, ये बहुत बड़ी बात। लोग इसको तस्लीम नहीं करते इसलिए कि उनको बीता नहीं ना, बीतने से पहले हमने उनको फ्री कर दिया। लेकिन जिस फैमिली में ऐसा बीत चुका है और किसी फैमिली में इसके बीतने का अच्छा रिजल्ट हुआ है होम्योपैथिक मेडिसिन से, वो लोग जानते हैं कि हमारी जिंदगी में इससे क्या हुआ। मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि होम्योपैथिक ऑर्गेनल को बहुत अच्छे से पढ़ो और सिक एंड डिजीज का डिफरेंस समझो। सिक में टोटलिटी बिल्कुल अलग होता है और डिजीज में टोटलिटी बिल्कुल अलग होता है। तो आज ये जो सिंड्रोम चल रहा है हम लोगों का, the patient is going to be express his sickness or her sickness to the urinary tract. That not means she or he is the sickness of the urinary tract. ये तो एक symbolic expression है, sick as a whole. So always any part of the body, those who are very sick, the sick vital force is going to express their burden in this weakest part of the body. तो अब वीकेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी हम लोग कैसे समझते हैं? वीकेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी हम लोग समझते हैं उसके फैमिली हिस्ट्री के एनालिसिस करने से। इसलिए मैं अपने केसेस में, अपने क्लिनिक में लोगों को ये बताता हूँ कि फैमिली हिस्ट्री को बहुत अच्छे से लो। बाय फैमिली हिस्ट्री यू आर गोइंग टू वॉच the weakest part of the body. और the weakest part of the body आपको पता चल जाएगा तो कोई भी either emotional और physical और environmental कोई भी लेवल से थोड़ा सा भी इरिटेशन आने से अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फ्लुएंस हो जाता है तो आप देखोगे कि उसके फैमिली में, के फादर, के मदर में जरूर यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन कॉमन था। और ये जो कॉमन टेंडेंसी थी यूरिनरी ट्रैक्ट के सिकनेस की, वो इसमें भी है। अगर ये हिस्ट्री में मुझको मिल जाता है पहले से लेकर, तो जहां देखते हैं कि थोड़ा सा यूरिनरी इरिटेशन आ रहा है बाय एनी इन्वॉल्व, मींस इज द पेशेंट इज अंडर द सिक लेवल, फौरन उसको मेडिकेशन करो और मेडिकेशन करके वहीं पे उसको खत्म कर। आजकल के जमाने में बहुत सारे पेशेंट अभी यूरिनरी ट्रैक्ट के सिकनेस के आ रहे हैं, किडनी फेलियर के केसेस आ रहे हैं। आज मुझको एक केस मिला, उसमें उसके किडनी फेलियर उसके फैमिली में है। अगर वो मुझको शुरू में मिला होता तो मैं उसकी कोशिश करता, कोई भी सिक लेवल में बात होती तो वहीं पे अबॉर्ट कर देता। आज वो किडनी लेवल के फेलियर में नहीं जाता। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंसीडर द फैमिली हिस्ट्री एंड पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में भी आप देखेंगे कि बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन मेरा होता आया है, मतलब आगे चल के बहुत एडवांस पैथोलॉजी मेरे यूरिनरी ट्रैक्ट में आने वाली है। अगर ऐसा है तो हमको फौरन ही वो मेडिसिन, जहां इरिटेशन, थोड़ा सा इरिटेशन होने के बाद पेशेंट का सिकनेस डेवलप हो रहा है, बस वही हम अबॉर्ट कर देंगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे। This is the beauty of homeopathic system of medicine. This is the advantage of homeopathic system of medicine. This is the scope of the homeopathic medicine.
वी मस्ट अवेयर। और मेरा अवेयरनेस इस बात को बताएगा कि ऐसे रिजल्ट हमको तैयार रखने चाहिए। और पेशेंट को वॉच करना, जो राजी हो जाए आपका फैमिली फिजिशियन अपने रखने को, उसका जवाब ही नहीं होता तो ठीक है, वो फैमिली हिस्ट्री करके पता लगा कि जो जितना हो सकता है कर दीजिए। मैं तो अपने मरीजों को साफ बोल देता हूँ, भाई ऐसा है, इसमें तुमको, बहुत सारे लोग पूछते कब तक मेडिसिन खाते रहना पड़ेगा। अरे दिन भर में 3 टाइम खाना है, तेरा दिल नहीं बढ़ता है, एक वक्त मेडिसिन अगर हम दे दिया तो तेरे लिए मुसीबत हो गया। ऐसे लोग पढ़े लिखे होते हैं लेकिन जाहिल होते हैं, अपने बॉडी के बारे में नहीं सोचते हैं कि अगर हम एक वक्त नहीं खाना खाएं या कुछ वक्त नहीं खाना खाएं तो मेरे अंदर एक न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी डेवलप हो जाएगा। ठीक से अपने डॉक्टर को अपना केयर नहीं कराएं तो मेरे अंदर कोई भी कोने में बैठा हुआ कोई भी इन्फेक्शन बैठा डिजीज की तरह डेवलप होता रहेगा और आगे चलकर मुसीबत बनेगा। सिंपल सी बात है, सिंपल, कि अगर आपके खाने पीने में कमी होने से न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी हो सकता है तो मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी बॉडी के बिहेवियर, मेंटल एटीट्यूड, कच्चा पक्का खाना, उल्टा सीधा खाना, उस इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस से क्या आपके अंदर कहीं सिकनेस डेवलप नहीं हो रहा है। बट वी इग्नोर इट, नॉट गिविंग एनी इंपॉर्टेंस। माय हम्बल सबमिशन टू यू एज अ फिजिशियन टू मेक अवेयर of your patient and your patient family। ये सब एग्जाम्पल देकर दिखाइए उनको आप। और बहुत सारी चीजें, आपको बहुत ठंडक पड़ती है तो ठंडा लगता है कि नहीं लगता, बहुत गर्मी पड़ती है तो बहुत गर्मी लगता है। तो हमारे बॉडी को बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन वी आर गोइंग टू मेक अ बैलेंस, और हम इन चीजों से बचते रहेंगे। मेरा आज एक इंट्रोडक्शन था कि हम लोग लोकल डिजीज को लोकल नहीं मानना चाहिए, लोकल को एक जनरल का एक्सप्रेशन मानना चाहिए बस। एंड दिस लोकल should be considered as a totality of the sickness, to make sickness at the level of the sickness to stop, to abort the further development of the। हमें लगता है कि आप आज के ये इंट्रोडक्शन के अच्छी तरह समझ गए होंगे कि importance of the local symptom is not, it is the expression of the total symptom। Thank you, Mahesh।